चेतना का वाहक है। इसीलिए हम सभी उनको फूलों से स्वागत कर रहे हैं। अब त्रिपुरा तथा बांग्लादेश के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इंचार्ज कविता बहन जी अपनी मधुर वाणी से सबका स्वागत करेंगी। ओम शांति। शुभ सन्ध्या। আজকের এই দিনটা আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন। আজকের দিন আমাদের মধ্যে এসেছেন সিস্টার শিবানী, যার মধুর শব্দ শুনে, যার মুখের এক নির্মল হাসি দেখে অনেকেই নিজের মনের দুঃখ ভুলে যায় এবং জীবনের সঠিক দিশা পেয়ে যায়। আজকে আমরা শিবানী বেহেনকে এখানে পেয়েছি। শিবানী বেহেন এবং আমাদের মঞ্চে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ত্রিপুরার তরুণ মুখ্যমন্ত্রী, নতুন মুখ্যমন্ত্রী, যার উপরে অনেক সবার আশা এবং ভরসা রয়েছে। ওনাকে আমরা পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। ওনাকে আমরা স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের মধ্যে সুদূর মাউন্ট আবু থেকে ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ যোগা এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মেডিকেল উইংয়ের চেয়ারপারসন ডক্টর বনারসিলাল শাহ ভাইজিও এসেছেন। ওনাকেও আমরা আন্তরিক অভিনন্দন ও স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা সহ আসাম, বাংলাদেশ আর মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ এই অঞ্চলের ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি নির্দেশিকা রাজযোগিনী শিলা দিদি, ওনাকেও আমি স্বাগতম জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের মধ্যে মঞ্চে রয়েছেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য প্রফেসর অরুণোদয় সাহাজি, ওনাকেও আমি স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে এই অনুষ্ঠানে আপনারা যারা এসেছেন, আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছেন সকল ভাই বোন মায়েরা, সবাইকে আমি স্বাগতম জানাবো এবং স্বাগতম জানাবো পরমপিতা পরমাত্মা শিব বাবাকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যার স্থাপনা আজ থেকে 82 বছর আগে হয়েছিল, সন 1936 সালে, এবং মানব সেবার কাজে নিয়োজিত এই সংস্থা সারা বিশ্বের 140টি দেশে সেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যার আন্তর্জাতিক মুখ্যালয় মাউন্ট আবুতে অবস্থিত। এবং ত্রিপুরায় এই বিশ্ববিদ্যালয় গত 23 বছর ধরে কাজ করছে এবং এই সেবার যিনি প্রেরক স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা, সেই পরমাত্মার নির্দেশে আমরা ত্রিপুরার জনগণকে পরমাত্মার শান্তির বাণী পৌঁছে দেওয়া যা সেবা করছি, আমি সেই শান্তিদূত ভাই বোনদেরকেও অভিনন্দন জানাবো। আজকে যে অনুষ্ঠানটা ব্রহ্মা কুমারী শিবানী বোনকে নিয়ে, ব্রহ্মা কুমারী শিবানী বোনকে আপনারা অনেকেই হয়তো টিভিতে দেখেছেন, তাই না? কারা দেখেছেন একটু হাত তুলবেন। ম্যাক্সিমাম সবাই তো শিবানী বোনকে দেখেছেন এবং শুনেছেন। উনি হলেন বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার এক অদ্ভুত সমন্বয়, যিনি নিজে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করে উনি পুনা ইউনিভার্সিটি থেকে ফার্স্ট গোল্ড মেডেল নিয়ে পাস করেছিলেন। কিন্তু উনি অন্য ইঞ্জিনিয়ারদের মতো রাস্তা, বিল্ডিং, ব্রিজ, ড্যাম ইত্যাদি না বানিয়ে মানুষের জীবনকে রি-ইঞ্জিনিয়ারিং করার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, নিজেকে এই সেবায় সমর্পিত করেছেন।
মানব মনের গভীরতায় ঢুকে তার ভিতরে থাকা সমস্যাগুলোকে কিভাবে সমাধান করা যায়, নিজের মনের শক্তি বাড়িয়ে নিজের সমস্যাগুলোকে যে আমরা নিজেই সমাধান করে নিতে পারি এবং নিজের দৃষ্টিকে সুন্দর বানিয়ে পুরো সৃষ্টিটাকেই নতুন বানিয়ে নিতে পারি, সেই কথারই उन्हीं पथ देखाচ্ছেন। तो आज सिस्टर शिवानी को हम यहाँ सारे त्रिपुरा के सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागतम 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 अभिनंदन करते हैं। कल बांग्लादेश के ढाका शहर में उनका कार्यक्रम था। इतना अच्छा कार्यक्रम था, वहाँ के हजारों लोगों ने उनका सुना, कार्यक्रम से प्रेरणा लिया और जाते वक्त वो भाव विभोर हो गए, आंखों में आंसू लेकर, खुशी के आंसू लेकर गए। आज हम सब भी ऐसी ही एक खुशी का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन का उद्देश्य, हम सबको विधाता ने जीवन दिया है, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए, उसको अगर हम सही समझें तो इस जीवन को हम हीरे तुल्य बना सकते हैं। तो शिवानी बहन से हम अभी सुनते हैं और आप सबको अभिनंदन के साथ साथ सारे कार्यक्रम के जो संचालक हैं, प्रेरक हैं, उस परम पिता परमात्मा को भी हम इस सभा में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम सब अपनी श्रद्धा उनको ज्ञापन करते हैं। ओम शांति। बहन जी को बहुत बहुत शुक्रिया। अब मंगल दीप प्रज्वलन के लिए हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्बोधक माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव जी तथा हमारी सबकी अति प्रिय शिवानी बहन जी और मंच पे उपस्थित समस्त अतिथिगणों को मैं आमंत्रित करती हूँ। अभी हमारे आज के सभा के उद्बोधक हमारे त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव जी को मैं उनके मूल्यवान भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्रथमे मैं धन्यवाद जनाई प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्था के যে বোনেরা আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করেছেন এবং কিছু বলার সুযোগ দিয়েছেন, আমি সমস্ত বোনেদের প্রতি কৃতজ্ঞ। মঞ্চে উপস্থিত আমাদের সবার প্রিয় বোন এবং শুধু ভারতবর্ষই নয়, দুনিয়ার 142টি দেশের মধ্যে 9,000-এর উপর যে মূল সংস্থানগুলি রয়েছে, আর তার চাইতে অনেক বেশি সংখ্যায় ছোট ছোট সংস্থান রয়েছে, আর যার বাণী শোনার জন্য সারা বিশ্বের এই 142টি দেশ নয়, যারা আস্থা টিভির মাধ্যমে ওনার বাণী
শোনার জন্য। কালকে রাত্রে আমি দেখছিলাম, ওনাকে বলছিলাম আমি ব্যাকুল হয়ে থাকি। তো আজকে ওনার সান্নিধ্য আমরা পেয়েছি। আমাদের প্রিয় শিবানী বেহেনজি, ওনাকে সিস্টার শিবানী আমরা বলে থাকি। মঞ্চে উপস্থিত विधायक दिलीप कुमार दास जी, वीके शीला बहन जी, डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड बांग्लादेश, ब्रह्म कुमारी सेंटर, डॉक्टर बेनशीलाल शाह जी, Chairperson of Medical Wing, Mount Abu, Dr. অরুণোদয় সাহা, আমাদের সবার পরিচিত, আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির উনি ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন, আর বিশিষ্ট সমাজসেবী, আর মাঝে মাঝে আমিও মার্গদর্শন নেই। और বড় মাত্রায় উপস্থিত আমার সমস্ত প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরী সংস্থানের সমস্ত বোনেরা, উপস্থিত সমস্ত ত্রিপুরাবাসী, বাংলাদেশ থেকে হয়তোবা অনেক এসছেন, সবাইকে আমি ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, সাধুবাদ জানাই। আজকে আমার বেশি বলার কোনো কিছুই নেই, আমি শোনার জন্য এসেছি। কারণ আমরা রাজনৈতিক জীবনে আছি, তো যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার, মন স্থির রাখা ও ধৈর্য সহকারে কাজ করা, সেটা তো মঞ্চে যারা বসে আছেন এই বোনেরা সারা বিশ্বে করে চলছেন। মেডিটেশন, সেটার কাজ আমাদের ত্রিপুরা তো 1995 সাল থেকে ওনারা কাজ শুরু করেছেন। আর আমার যে বিধানসভা কেন্দ্র বনমালীপুর, সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান সংস্থান বানানো হয়েছে। ইলেকশনের সময় আমি যখন ঘরে ঘরে যাচ্ছিলাম, তো আমি তখন আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য সেই আশ্রমে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আর সেই আশীর্বাদ কতটা ফলপ্রসূ সেটা 3 তারিখ যখন রেজাল্ট এসছে, তো ত্রিপুরাবাসী সেটা অনুভব করেছে। আর সমাজের মধ্যে অবিরল যে কাজ করে চলছেন, কিছু কয়েকটা বিষয় বলে আমি শেষ করে দেব। নেশামুক্তি আন্দোলন, বিভিন্ন সচেতনতা শিবির, চিকিৎসা, স্বচ্ছতা, নারীদের সশক্তিকরণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, এই সমস্তগুলি আমাকে লিখে দিয়েছে যে এই কাজগুলি ওনারা করেন। আমি দেখছি আমার সরকারের কাজগুলি তো আমার বোনেরা করছেন।
ये मेरा सरकार का जो काम है ये आप लोग कर रहे हैं। कि मेरा जो पहला जो कि मैं 2 महीने का सरकार है, तो मैं एक दिन में त्रिपुरा में इंडस्ट्री नहीं डेवलप कर सकता। मैं उसका योजना बना सकता हूं। जो एक काम मैं कर सकता हूं, जो त्रिपुरा के लोग परेशान थे बहुत दिनों से, जो हमसे मांगा था, वो है नशा मुक्ति करना है त्रिपुरा को, उससे नौजवानों को बचाना है। वो काम आप लोग कर रहे थे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत मैं आभारी हूं, जो मैं आप लोगों से सीख रहा हूं कि वो काम आप लोग पहले से ही कर रहे थे। मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं। जो हमारे बहनों लोग पूरे दुनिया में जो काम कर रहे थे, वो काम मैंने त्रिपुरा में सरकार के नाते इनके साथ हाथ बटाने का काम शुरू किया है। और मैं पूरा भरोसा के साथ बोल सकता हूं, आप लोगों ने जो काम शुरू किया, उस काम को अंतिम रूप देना मेरा काम है। मेरे त्रिपुरा में नशा मुक्त बनाना है, ये मेरा सरकार का पहला बिंदु है। ये मैं पहला बिंदु मेरा वही है, जो त्रिपुरा को नशा मुक्त कर देना है। यह फेंसिडिल का लोग बच्चे पी लेता है, टेबलेट खाता है, उसके बाद नशा ब्राउन शुगर ले लेता है। ये मेरे त्रिपुरा में पहले था ही नहीं, मैंने कभी सुना ही नहीं। 20 साल पहले त्रिपुरा में ये होता था। आज 20-25 साल में ये डेवलप्ड हो गया है। अरे नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, वो ठीक चलता है, इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। किंतु कोई बच्चा नशाग्रस्त हो जाए, उससे निकलना माँ बाप के पास इससे बड़ा अभिशाप और कुछ नहीं हो सकता है। बहुत माए मेरे पास आए हैं इलेक्शंस के पहले, बोले आपका सरकार आए तो हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उस हिंदी स्कूल माठ में वो रात को गांजा का पुड़िया बिकता है, आप साहब वो बंद करा देना। उस घर में होती है, मेरे मोबाइल पे कभी कभी फोन आ जाता है बहनों का, रात को वहां आप जाइए, वहां बैठ के वो लोग कर रहे हैं, आप पुलिस को बोलिए अभी पकड़ा जाएगा। मेरे को बहने लोग बहुत मदद कर रहा है इसमें। আমি আপনাদের সঙ্গে কথা দিচ্ছি, যেই কাজটা আমার বোনেরা করে যাচ্ছেন এই সংস্থানের মাধ্যমে, সেই কাজটাই সরকার নিশ্চিত সঠিক দিশাতে নিয়ে যাবে। এবং নেশা মুক্ত ত্রিপুরা করলে হি আপনি আপ, যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নারী নির্যাতন যে চলছিল, আপনি আপ তার সঙ্গে তার রিলেশন রয়েছে। নেশা মুক্ত হতে ही अपने आप महिला के ऊपर जो निर्यातन वो अपने आप ग्राफ गिर जाएगी। जैसे ही आदमी सही दिशा में काम करेगा, नशा से मुक्त हो जाएगा, उसका मन शांत हो जाएगा। जो मेडिटेशन काम बोल रहे हैं, मेरे को भी आप लोग मेडिटेशन कराने का कुछ बंदोबस्त करिए, क्योंकि मैं भी समय मिलता नहीं मेरे को। किंतु मैं देख रहा हूं, जो मैं थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी पहले करता था, वो मैंने अब मिलता नहीं, समय कर नहीं पाता हूं। किंतु वो करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को ऐसी जगह में बैठा दिया, मेरा मन स्थिर रहना सबसे बड़ा जरूरी है। तो क्योंकि आपने हमको चुन के बैठा दिया, तो मेरा मन स्थिर नहीं रहेगा तो त्रिपुरा का मन स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए त्रिपुरा का मन स्थिर रहे, इसलिए मेरा भी मेडिटेशन होना जरूरी है। तो मैंने दीदी को बोलूंगा, जो मेरा भी मेरे से आप मैंने क्या बोलूंगा, बड़े बहन जैसा, ऐसा सामने टीचर जैसा खड़ा होकर बोले समय निकालिए, आपको आधा घंटा निकालना ही चाहिए, आप त्रिपुरा में रहेंगे तो। ऐसा करके मेरे को बाउंड करना है। जैसे मन मेरा स्थिर जितना रहेगा उतना मैं अच्छा काम कर पाऊंगा। इसलिए किसी व्यक्ति को स्टूडेंट बन के सीखना, ये सबसे बड़ा जीवन का बड़ा उपलब्धि होता है। किसी व्यक्ति ने सोच लिया जो मैं सब कुछ जानता हूं और मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, तो उस दिन उस व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। और मैं एक स्टूडेंट के नाते सीखना चाहता हूं। गलतियां लोगों का होता रहता है, जो बच्चे है जो सीखता है उसी के जो गलतियां होता है, और जो गलतियां करता है वही काम कर जाता है। तो मैं आज यही समाप्त करूंगा। यह बहुत कुछ विषय है जो कि मैं शिवानी बहन से सुनना चाहता हूं, इसलिए मैं तो अपना विषय बहुत जगह पे रखता हूं, तो आप लोग भी सुनते रहते हैं, टीवी में भी आता है, कहीं भी पेपर में भी आता है, किंतु इनका भी आता है, पूरा दुनिया में आता है। हमारा तो त्रिपुरा में आता है, उनका पूरा दुनिया में उनका जो उनका आशीर्वाणी हम लोग सुनते रहते हैं। और मैं आज उनका ही आशीर्वाणी सुनने के लिए आया हूं। और जो मेरा और एक दूसरा निवेदन है, जो मेरा जो बहनें यहाँ बैठे हैं, मेरे को भी मेडिटेशन कराए और मेरे से समय निकाले, किस समय होना चाहिए
और कैसे निकलना है। व्यक्ति चाहे तो हर चीज कर सकता है, उसको व्यवस्थित होना जरूरी है। मैं व्यवस्थित रहूंगा तो अपने आप मेरे सिस्टम भी व्यवस्थित रहेगा। मेरे को भी व्यवस्थित आप लोग बनाइए और मैं आप लोगों से आभारी हूँ। আমি আবারও আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা আমাকে এখানে ডেকেছেন, এখানে বলার সুযোগ দিয়েছেন। আমি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বিষয় সমাপ্ত করছি। জয় হিন্দ। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। উনি ওনার ব্যস্ততার মধ্যেও मैंने क्योंकि वो बोलना जरूरी है क्योंकि ये व्यवस्थित है। मैं देख रहा हूँ समय के साथ काम करना, व्यवस्थित रहना, मेडिटेशन करना और सब चीज एकदम व्यवस्थित करना। मेरे बहन जी है मेरे घर में, एक दिन लेके गया, बोले ये बनाया अभी भी गरम गरम। तो मेरे बहन लोग उस चीज बनाता है कुछ नाश्ते का जो भी हो। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा 2 साल 9 महीना 3 साल के आसपास मेरा राजनीतिक जीवन है, बहुत बड़ा नहीं है। बहुत कम समय में आप लोगों ने इतने बड़े जगह में आपको मेरे को बैठा दे। मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा आप लोगों का, क्योंकि और बाकी मेरे प्रधानमंत्री के पास तो मैं आभारी रहूंगा ही कि उन्होंने त्रिपुरा को उस तरीके से काम करने का दिशा दे रहा है। यहाँ जब बैठा हूँ तो हर चीज में कुछ अपनापन और कुछ जो नया चीज दिख रहा है। जैसे पानी का बैठा हूँ, पानी का जो गिलास रखा है उसके ऊपर जो वो ऐसे जो ढक के रखते हैं, तो स्वभाव तौर पे त्रिपुरा में प्लास्टिक का वो रखता है, यहाँ स्टील का रखा गया। तो बहुत पहले से हम देखते थे जब पूजा करती थी माँ, तो जब पूजा घर में भगवान को पानी रखते थे तो उसके ऊपर स्टील का वो ढक्कन रखा जाता था। तो मैंने बहुत दिन बाद वो चीज देखा। दूसरी, मेरे सामने और बहन जी के सामने जो एक घड़ी रखा हुआ है, तो वो मैंने कभी भी राजनीतिक मंच पे तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो घड़ी के टाइम के बाद ही नेता पहुंचता है। तो यहाँ देखा मैंने घड़ी रखा हुआ है, मैंने आप प्रधान अतिथि है वो टाइम में ही चलिए। तो मैं इसलिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं कि मैं समय के बाद आया हूं। समय 6 बजे था, मेरा एक माइनॉरिटी मोर्चा का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम इसमें नहीं थी, किंतु तब भी आते समय रास्ते में मैंने वो गया था क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आया था उसमें माइनॉरिटी मोर्चा का, तो इसलिए गया। तो उसमें 10-12 मिनट मेरा लेट हो गया। तो घड़ी देखते मेरे को लगा माफी मांगना चाहिए क्योंकि सामने घड़ी भी है। तो आपको व्यवस्थित रखने के लिए बोल नहीं रहा था कोई बहन मेरे को, किंतु घड़ी सामने है इसलिए मैं माफी मांगता हूं, मैं देर से आया हूं। और बाकी मैं जब कैंडल जलाया, आपने फॉलो किया ना कि आप तो यहाँ के सब शिष्य भी है बा इसके साथ जुड़े हुए हैं लोग हैं, सबको पता है। जो कैंडल्स है वो कैंडल्स में सोने जैसा जड़ी से वो इसको वो जोड़ा हुआ था, कितना सुंदर लग रहा है। तो हर चीज में जो बहनों जो काम करता है तो किस तरीके से काम करता है, उसके ऊपर अपनापन रखता है, प्यार रखता है, वो झलता है। इसीलिए तो भारतीय जो देखना केरला से विभिन्न जगह से भारतीय महिला को नार्स से दुनिया में चाहता है, किस लिए? सेवा भाव है उनके अंदर, वो प्रेम है उनके अंदर। ये मेरे देश में ही होता है। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे अभी जब बात कर रहा था तो मेरे देश में नहीं दुनिया में अकेला बहनों का इतना बड़ा संस्थान और किसी के पास नहीं है। तो इससे भी मैं गर्वबोध करता हूं, ये मेरे देश के पास है। दुनिया के सबसे बड़ा बहनों का संगठन हम लोगों ने बनाया, हमारे देश की मिट्टी ने बनाया। और मैं कहता हूं दुनिया के हर कोने में ये पहुंच जाए और सबको मेडिटेशन कराए और सबको दिशा दे। यही मेरे को आपने दोबारा बोलने का मौका दिया, तब धन्यवाद। আমাদের খুবই ভালো লাগছে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছেন এখানকার সমস্ত ব্যবস্থাপনা দেখে। ওনার মূল্যবান সময় আমাদের দিয়েছেন, আমরাও আপ্লুত, ওনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नॉर्थ ईस्ट तथा बांग्लादेश की डायरेक्टर राजयोगिनी शीला दीदी जी से अनुरोध है कि सबके लिए आशीर्वचन में 2 शब्द बोले।
ओम शांति। परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सिस्टर शिवानी जी, वाइस चांसलर जी, डॉक्टर बनारसी भाई और एमएलए साहब और कविता बहन, साथ साथ आप सभी मेरे प्रभु प्रेमी आत्मबंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज हम सभी विशेष शिवानी बहन से कुछ आध्यात्मिक चर्चा सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंग है। आध्यात्मिकता हमारे जीवन को ऊंच बनाती है, हमारे कर्मों में कुशलता लाती है। साथ साथ जैसे अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर आध्यात्मिकता के साथ साथ राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है। मेडिटेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। एकाग्र मन जीवन के अंदर शक्ति प्रदान करता है और हर कार्य करने में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता हर व्यक्ति चाहता है, तो कैसे हम सफल होंगे, उसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रतिदिन मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिसे सीख करके आप लाभ ले सकेंगे। आप त्रिपुरा निवासी, अगरतला निवासी बड़े भाग्यवान हैं कि शिवानी बहन को आप सब टीवी में तो देखते ही हैं, लेकिन आप आज सन्मुख देख रहे हैं। इससे बड़ी खुशी क्या होगी। कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि शिवानी बहन यहाँ आएंगी, सोचा नहीं होगा, किंतु समय बड़ा बलवान है। आज समय आया है और आज आपके सन्मुख बैठी हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं सुनने के लिए। अभी तो और भी कल भी 2 टाइम चलना है, आप सब आएंगे। मेरी शुभ भावना है कि आप सब शिवानी बहन जी के द्वारा सुनकर अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। हमारी आदरणीय शीला दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम सब की इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अभी ये मंच शिवानी दीदी को अर्पित है। 1 मिनट के लिए हम सब साइलेंस में बैठेंगे। बहुत सुंदर विषय है आज हमारा, और हम सबको उस विषय का प्रैक्टिकल सबूत देने के लिए हमारे स्टेट के लीडर कहे या बड़े भाई कहे, ऐसा लगा ना कि परिवार का सदस्य परिवार में आया है, या ऐसा लगा कि चीफ मिनिस्टर आया है। क्या लगा आप लोगों को? कैसी फीलिंग आई? आपको लगा फैमिली मेंबर आए हैं फैमिली में? हाँ, कैसे बात कर रहे थे? जो लिख कर आए थे वो तो साइड पे ही रह गया। एज अ चीफ मिनिस्टर जो बोलना था वो तो नहीं बोला, लेकिन एज अ फैमिली मेंबर जो बोलना था, जो देखकर भाव आए वो शेयर किया। इसको कहते हैं अपनापन। और कितनी ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, प्योरिटी एंड फैमिली फीलिंग, ये विशेषता 5 मिनट के अंदर व्यक्तित्व के अंदर दिखाई देती है। अब हम सब 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और अपनी 4 विशेषताएं देखते हैं। हर एक के अंदर है बहुत सारी विशेषता। अपनी विशेषताएं पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारी क्वालिटी होगी, जो हमारी विशेषता होगी, उसको हम अपने हर कार्य में यूज कर सकते हैं। 1 मिनट साइलेंस में बैठो और अपने आप से 2 क्वेश्चंस
One, what is purpose of my life? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? And second, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरे पास क्वालिटीज कौन सी है? आंख बंद करो ताकि आसपास का कुछ न दिखे और ये 2 क्वेश्चंस के आंसर अपने अंदर से निकालो। देखिए मन क्या कहता है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? परिवार को संभालना, अपनी जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना, ये तो मेरी ड्यूटी है। उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है मेरा? क्या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, कंटेंटेड? क्या दूसरे मुझसे संतुष्ट हैं, कंटेंटेड? मेरी कौन सी क्वालिटी है जो मुझे सारा दिन हर कर्म में यूज करते हैं? अपनी क्वालिटी देखें। कौन सी मेरी वो क्वालिटी है जो हर कर्म में सारा दिन यूज होगी? ओम शांति। जब हम अपने जीवन को देखते हैं, एक एक दिन बीतता जा रहा है, पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है, कब दिन पूरा हो जाता है। और जैसे भाई साहब ने कहा, टाइम भी नहीं मिलता है आजकल, है ना? अगर हम अपने जीवन की प्रायोरिटी फिक्स करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या, फोर्थ क्या? तो आज हम में से मेजॉरिटी के लिए नंबर 1 जिम्मेवारी क्या आएगा? क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या लिखेंगे? यस, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको लिखेंगे? हाँ जी, मनी, हेल्थ। अच्छा, हेल्थ। और सेकंड लिखें अपना प्रायोरिटी क्या लिखेंगे? सेकंड ऐसा प्रायोरिटी इन लाइफ। हाँ जी, अच्छा, पीस प्रायोरिटी इन लाइफ। किस किस की शांति प्रायोरिटी इन लाइफ है? जब भाई साहब कह रहे थे ना कि हमें त्रिपुरा को नशा मुक्त बनाना है, कि कोई भी किसी भी प्रकार का नशा किसी के अंदर भी ना हो। अब नशा किस प्रकार का होता है?
कुछ चीजें जो आजकल हम खाते हैं, कुछ चीजें जो आजकल हम पीते भी हैं, कुछ और नशे भी होते हैं। एक होता है अहंकार का नशा, एक होता है गुस्से का नशा, रूप से बात करना, जोर से बात करना और अपना काम करवा लेना। तो ऐसा थॉट आया कि इतना सुंदर ये स्थान है, इतना सुंदर ये स्थान है। लैंड होते ही लगा कि पीसफुल कितनी वाइब्रेशन है। ऐसे शहर को अगर क्रोध मुक्त शहर बना दें, जहाँ किसी को गुस्सा ही ना आता हो, तो पूरी दुनिया से लोग आएंगे देखने के लिए कि इस सृष्टि पर ऐसा भी कोई शहर है जहाँ कोई गुस्सा ही नहीं करता है। बनाए इस शहर को नो एंगर वाला। आपको गुस्सा तो नहीं आता किसी को? आप में से किसी को गुस्सा आता है कभी? किस किस को गुस्सा आता है? हाथ उठाओ एकदम। तो सबसे पहले आप छोड़ेंगे तो बाकी सब भी छोड़ देंगे। फिर ये सारी चीजों का ना एक कनेक्शन है। अगर हम खुश हैं तो हम किसी नशे की तरफ जाएंगे नहीं। लेकिन अगर मेरे से कोई मेरी वो दवा है, वो नशे को दवा मानते हैं, वो उनको खुश रखने का एकमात्र अगर साधन है, तो किसी से उनका नशा हटा लो लेकिन उनको खुश रहना नहीं सिखाओ, तो कभी कभी हो सकता है वो वापस उस चीज की तरफ वापस चले जाएंगे। लेकिन किसी को खुश रहना सिखा दो और कोई अपना ध्यान रखकर सारा दिन खुश रहना सीख ले, तो वो अपने आप ही किसी बाह्य नशे की तरफ जाएगा ही नहीं। क्योंकि बाह्य चीजें चाहिए क्यों? क्योंकि थोड़ी देर वो लेने से मन क्या हो जाता है? सारी चिंताएं, सारी प्रॉब्लम्स एक अलग ही नशे में रहते हैं कि दुनिया तो परफेक्ट है। लेकिन जब वो नशा खत्म होता है, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स फिर से दिखाई देने लगती हैं। फिर अगले दिन फिर लेते हैं ताकि वो वाली खुशी को अनुभव करें। हर रोज वो लेते जाते हैं, यहाँ की शक्ति घटती जाती है। जितनी पावर घटती जाएगी, खुशी उतनी घटती जाएगी। जितनी खुशी घटती जाएगी, नशा ज्यादा लेते जाएंगे। इसीलिए जितना लेते हैं वो कांस्टेंट नहीं रहता, धीरे धीरे वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ की पावर घटती जाती है। और यहाँ की पावर को अगर बढ़ा दें तो बाहर से खुश रहने के लिए कुछ लेना नहीं पड़ता। तो पर्पस ऑफ लाइफ में अगर हम अपना नंबर सबसे पहले रखें, जैसे आज हमने कहा कि काम करने में इतना समय बीत जाता है कि हमें अपना ध्यान रखने का टाइम नहीं मिलता। और कितनी नम्रता से उन्होंने कहा कि अब तो मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। क्योंकि सुबह उठते ही क्या शुरू हो जाता होगा, एक काम, एक काम, एक काम, एक काम, एक काम। काम कभी खत्म नहीं होगा। काम तो और समय के साथ क्या होने वाला है, बढ़ता ही जाएगा। जिम्मेवारियां भी बढ़ते ही जाएंगी। आप में से मेजोरिटी के हाथ में एक फोन होगा। आज का फोन देखो कितने काम करता है। बात भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, ईमेल भी करते हैं, फोटो भी खींचते हैं, गाने भी सुनते हैं, शॉपिंग भी कर लेते हैं, टिकट भी बुक हो जाती है। सब कुछ हो जाता है एक फोन पे, सिर्फ और सिर्फ अगर वो फोन चार्ज्ड है। और वही फोन को चार्ज नहीं करो तो वो कितने काम कर सकता है? तो वो कितने काम कर सकता है? तो वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ये हम एक बैटरी है, यहाँ हेल्थ का भी ध्यान रखती है, फैमिली का भी ध्यान रखती है, काम का भी ध्यान रखती है, समाज का भी ध्यान रखती है, सेवा भी करती है। काम 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 काम। लेकिन आज हम ये सारा काम कर रहे हैं बिना अपने आप को चार्ज करे, क्योंकि हमने कहा काम ही इतना है तो चार्ज करने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन क्योंकि हम अपने आप को चार्ज करे बिना काम कर रहे हैं,
आज आप देखो, हर चीज जो बहुत सिंपल थी आज थोड़ी डिफिकल्ट होती जा रही है। रिलेशनशिप्स जो इतने सिंपल हुआ करते थे आज थोड़े से डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में गई, मैंने कहा टॉपिक क्या है, तो एक बहन ने कहा, वो सब यंग मदर्स थी, तो एक बहन ने कहा बच्चों को कैसे संभालना है, दूसरी बहन ने कहा टेंशन से कैसे मुक्त होना है, तो तीसरी बहन कहती है बच्चों को संभाल लिया तो उसके बाद कौन सी टेंशन बचेगी बाकी। मतलब बच्चों को संभालना भी अब क्या लगता है हमारे को टेंशन का कारण बन गया है। पेरेंटिंग ब्यूटीफुल नेचुरल रिलेशनशिप क्यों टेंशन का कारण बन गया? क्योंकि अपना ध्यान रखे बिना उस रिश्ते को निभाने की कोशिश। ये टेबल है, एवरीबडी लुक एट दिस टेबल ना। ये टेबल को आज हम ऐसे उठा सकते हैं 2 हाथ से। अगर 10 दिन खाना नहीं खाओ उसके बाद ये टेबल को उठाना, उसके बाद ये टेबल को उठाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। और 5 दिन खाना नहीं खाओ उसके बाद तो टेबल हिलनी भी नहीं हमारे से। और तब हम ये कहते हैं टेबल बहुत भारी है। टेबल भारी है या हम कमजोर हैं? टेबल भारी है या हम कमजोर हैं? हम कमजोर हैं, लेकिन हम कहते हैं टेबल भारी है। रिश्ते मुश्किल हैं या हम कमजोर हैं? रिश्ते मुश्किल हैं या हम कमजोर हैं? काम की टेंशन है, काम डिफिकल्ट है या हम कमजोर हैं? शरीर बीमार है या हम कमजोर हैं इसलिए शरीर बीमार होता है? सारी चीजें यहाँ की ताकत पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए प्रायोरिटी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आज प्रायोरिटी क्या बनी? वर्क, मेरा काम, मेरी फैमिली और फिर सेल्फ, मैं। तो काम इतना सारा समय ले लेता है, फैमिली के लिए थोड़ा सा समय मिलता है, तो थर्ड स्टेप पे तो सेल्फ पे तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसको अगर हम ऑपोजिट करते हैं, सेल्फ, फैमिली और फिर काम, इसका मतलब खुद को चार्ज किया, रिश्ते सुंदर बनाए और फिर काम पर गए, तो मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा। तो आज भाई साहब ने हमारा काम बहुत इजी कर दिया ये कहकर कि मैं रोज सुबह आधा घंटा करने वाला हूँ। तो आप करने वाले हैं तो हम सब भी करने वाले हैं, इकट्ठे मिलकर अपने आप को चार्ज करेंगे। आधा घंटा अपने लिए समय निकालने के लिए रेडी है? रेडी है? कौन कौन अपने आप के लिए आधा घंटा समय निकालने के लिए रेडी है? देखो, आपके कहने से औरों ने भी हिम्मत का हाथ उठाया। हाथ उठाओ भाई साहब, मुड़ के पीछे देख रहे, कौन कौन रेडी है आधा घंटा निकालने के लिए? भाई साहब, ये वो नहीं है जो इस ऑलरेडी आते हैं, ये सब वो हैं जिन्होंने अभी मेडिटेशन सीखना है, अभी सीखा नहीं है। आपके साथ साथ ये भी सीखने आने वाले। क्यों करेंगे? क्यों हम अपने आप को चार्ज करें? ताकि हर सिचुएशन में, हर सीन में हमारी हर थॉट राइट होगी। हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम हर सीन को बहुत प्यार से, डिग्निटी से क्रॉस करेंगे। गुस्सा क्यों आता है हमें? पहले हाथ उठाओ, किस किस को गुस्सा आता है? पीछे, ऊपर? ऐसे लगता नहीं आपके शहर में आके कि यहाँ भी कोई गुस्सा करता होगा, क्योंकि इतनी पीसफुल वाइब्रेशन है। फिर भी कभी कभी आता होगा, उसको भी खत्म कर देते हैं। गुस्सा क्यों आता है हमें? कब आता है गुस्सा? गुस्सा हमें तब आता है जब लोग या सिचुएशन इज नॉट द वे आई वांटेड टू बी। जब कोई मेरे अनुसार काम नहीं करता, जब कोई रिश्ते में मेरे अनुसार बिहेव नहीं करता, तो हम कहते हैं गुस्सा आना तो, क्या वर्ड यूज करते हैं? गुस्सा आना तो बोलो बोलो, नेचुरल है। अच्छा, और कई बार तो हम कहते हैं गुस्से के बिना तो
काम ही नहीं होता। अब ये बिलीफ सिस्टम यहाँ रिकॉर्ड हो गया कि गुस्से के बिना तो काम नहीं होता। अगर मैं अभी किसी को कहूँ ये टेबल उठा दो प्लीज, कहते हाँ हाँ आते हैं, फिर मैं 5 मिनट के बाद और प्यार से बोल गया प्लीज टेबल उठा दो प्लीज, तो तीसरी बार मैं थोड़ा जोर से बोलते हूँ, फटाफट उठा देता है। तो मेरे यहाँ क्या फिट हो जाता है, प्यार से बोला नहीं किया, दूसरी बार प्यार से बोला नहीं किया, तीसरी बार जोर से बोला जल्दी से काम हो गया। तो मेरे यहाँ क्या फिट हो गया, जोर से बोलो काम हो जाता है। अब टाइम वैसे ही कम है हमारे पास, तो 2 बार प्यार से बोलने में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे हम। तो अगली बार हमने क्या किया, वो पहले 2 वाले स्टेप्स को तो हटा दिया, जोर से बोला काम हो गया, जोर से बोला काम हो गया, जोर से बोला काम हो गया। जीवन जीने का तरीका बन गया। कुछ लोग तो कहते हैं मेरा वॉल्यूम ही इतना है, अभी इससे ज्यादा धीरे मेरे से बोला नहीं जाता है, बोलते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं ये तो मेरा तरीका ही बन गया है, कुछ कहेंगे ये मेरी आदत है। अब हुआ क्या, काम हो गया, इतने सारे काम हो गए, इतने सारे मिरेकल्स क्रिएट किए, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए एज अ वर्ल्ड, क्योंकि हमने काम किए, इतना धन कमाया, साथ साथ कुछ कुछ गवा दिया। बहुत कुछ कमाया, साथ साथ कुछ कुछ गवा दिया। क्या गवाया, मैंने टेबल तो उठवा ली, लेकिन गुस्सा करके उठवाई तो मेरा काम हो गया, खुशी घट गई। फिर मैंने अगली बार फिर किया, काम हो गया, खुशी घट गई, हेल्थ पे इफेक्ट आ गया। काम हो गया, गुस्सा करने की आदत बन गई, दिन में 5-6 बार कर लिया, शाम को घर पहुंचे अपने परिवार के पास, अपने बच्चों के पास। वो बच्चे जो भाई साहब ने कहा ना कि माएं फोन कर रही हैं कि प्लीज मेरे बच्चों को नशे से बचाओ। नशे से बचाने वाला सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो है उस बच्चे के पेरेंट्स, माता पिता। और उसका एक ही तरीका है कि बच्चे को इतना प्यार, इतनी शक्ति, इतनी दुआएं, इतनी पावर दें कि अपनी बैटरी से उसकी बैटरी को चार्ज कर दें। वो बच्चा कभी भी किसी नशे की तरफ जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर माता पिता ने कहा टेंशन नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है, जेलसी नॉर्मल है, डर नॉर्मल है, और ये सब करके घर पहुंचे शाम को, तो दोनों मम्मी पापा की बैटरी क्या, मम्मी पापा की बैटरी का क्या हालचाल है, डिस्चार्ज। तो बच्चे की बैटरी क्या हो जाएगी, बच्चे की बैटरी क्या हो जाएगी। एक बच्चे की बैटरी अपने पेरेंट की बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ जैसे पेरेंट की मन की स्थिति, वो ही बच्चे के मन की स्थिति। हम इस विद्यालय में एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस टाइम, कि गर्भ के अंदर उस 9 महीने के दौरान माता पिता के संस्कार कैसे बच्चे के अंदर पड़ते हैं। लेकिन उस 9 महीने के दौरान आज के माता पिता अगर कहते हैं टेंशन नॉर्मल, गुस्सा नॉर्मल, तो वो बच्चा तो पैदा ही उन संस्कारों के साथ ही हो रहा है। विदेश में इस पर साइंटिफिक स्टडी चल रही है। भारत में हमारे पास आध्यात्मिकता है, गर्भ संस्कार हमारे कल्चर में है, हमें पता है। आप सबको पता है अभिमन्यु ने कहाँ ज्ञान सुना था, अभिमन्यु ने ज्ञान कहाँ सुना था, तो ये हमें कहानी की तरह पता होता है ना। विच का मीनिंग क्या था उसका, कि गर्भ में बैठी आत्मा अपने आसपास होने वाली हर चीज कैच करती है, कैच करती है, कैच करती है। अब अगर ये मम्मी पापा गुस्सा नहीं करते हो, तो वो आत्मा 9 महीने के दौरान शांति का संस्कार क्रिएट करके वो बच्चा पैदा होगा यहाँ पर। और जब वो बैटरी चार्ज पैदा होगी, उसके बाद वो आगे जाकर कभी ऐसी चीजों की तरफ जा ही नहीं सकती। तो नशा खत्म करने के लिए हमें एकदम जड़ से उस चीज को ठीक करना पड़ता है। तो अगर अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना है, उसके लिए हमें सारा दिन
इस बैटरी का ध्यान रखकर शाम को जब हम घर पहुंचे, ये बैटरी कैसे होनी चाहिए? शाम को जब हम घर पहुंचे ये बैटरी कैसे होनी चाहिए? फुल्ली चार्ज। आज शाम को घर पहुंचते पहुंचते बैटरी क्या हो जाती है? इसलिए नहीं क्योंकि हम काम ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि काम करते हुए हम अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे। हम कहते टेंशन तो होती है, इरिटेशन तो होता ही है, गुस्सा तो आता। नो, एक बार प्यार से बोलो टेबल उठाने के लिए, 2 बार बोलो, 5 बार बोलो, लेकिन प्यार से बोलकर ही काम करवाओ, ताकि काम भी हो जाएगा लेकिन साथ साथ खुशी भी आ जाएगी, सेहत भी आ जाएगी, अच्छे रिश्ते भी आ जाएंगे। सिर्फ एक चीज नहीं चाहिए, धन कमाना हमारा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। सिर्फ धन से क्या आ सकता है? सिर्फ ऐसे सामान ही आ सकते हैं। जो जिसके पास ज्यादा धन होता है वो ज्यादा खुश होता है, जिसके पास ज्यादा धन होगा वो ज्यादा खुश होगा नहीं। लेकिन धन से सामान आएगा, खुशी किससे आएगी? खुशी किससे आएगी? भाई साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही कि आज मैं जहां पहुंचा वो आप सबकी दुआओं से पहुंचा हूं। दुआएं, एक होता है धन कमाना एंड दूसरा पर्पस ऑफ लाइफ होता है दुआएं कमाना। अर्न ब्लेसिंग्स एवरी डे इन एवरी कर्म। दुआएं कमाना, दुआएं कमाना, दुआएं कमाना, दुआएं कमाना। अब अगर मैं किसी को डांट दूं तो मैं क्या कमाऊंगी? अगर मैं किसी को गुस्सा करूं तो क्या कमाऊंगी? आपको पता है ना क्या कमाएंगे हम फिर अगर किसी को गुस्सा किया है? बहन जी, आपको अगर मैं अभी सबके सामने कुछ कह दूं यहाँ से गलत, आपको कितना टाइम लगता है भूलने में? कितने टाइम में भूलते हैं? अगर मैं आपको यहाँ से गुस्सा कर दूं, आप कितने टाइम में भूलेंगे? याद रहती है बात यहाँ पर? याद रहती है ना बात यहाँ पर? बुरी लगती है? बुरी लगती है? कितनी देर तक बुरी लगती है? आजकल लोगों को भूलने में टाइम लगता है, चोट जब लगती है। हम गुस्सा 1 मिनट के लिए करते हैं, लेकिन सामने वाला उसको 1 दिन, 1 वीक, 1 महीना, कई बार तो जीवन भर पकड़ के रखते हैं ना। तो अगर मैंने आपको यहाँ से डांट दिया और आपने उसको पकड़ के रखा, तो आपसे मुझे कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? उसको कहते हैं दुआओं का ऑपोजिट। सुबह सुबह आप अपनी कार में बैठे, जो भैया आपकी कार चलाने आता है उससे कोई गलती हो गई, हो सकता है वो लेट आ गया 10 मिनट, आपने उसको सुबह सुबह डांट दिया। कितनी देर डांटा? 30 सेकेंड्स, 1 मिनट। फिर आप अपने ऑफिस में चले गए, वो बाहर खड़ा रहा, बाहर खड़े खड़े आपको वो क्या भेजेगा? क्या भेजेगा? भेजता जाएगा या नहीं भेजता जाएगा? भेजता जाएगा ना। फिर वो अकेले खड़े खड़े क्या करेगा? वो 5 लोगों से और बात करेगा। पता है, सुबह सुबह डांट दिया आज, वो 5 लोग और क्या भेजेंगे? अब अंदर बैठ के धन कमा रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि साथ साथ और क्या कमा रहे हैं। जीवन का एक उद्देश्य बनाएं, काम करना, बहुत काम करना, धन कमाना, बहुत धन कमाना, लेकिन काम इस तरह करना कि हर कर्म के साथ साथ दुआएं कमाना, ताकि जीवन में सिर्फ धन नहीं आए, जीवन में खुशी आए, सेहत आए, प्यारे रिश्ते आए और हम अपनी दुनिया को सुंदर बना लें। धन कमाना ज्यादा आसान है या दुआएं कमाना ज्यादा आसान है? What is easy to earn, money or blessings? Money or blessings? Money or blessings? देखो, जो हम धन कमाएंगे ना, पैसे कमाएंगे, वो कब तक हमारे साथ रहेंगे? कब तक हमारे साथ रहेंगे? जिस क्षण तक ये आत्मा इस शरीर में है। एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ी,
ये सोफा, ये मकान, ये गाड़ी, ये धन, ये शरीर, ये परिवार सब पीछे रह गया। साथ में क्या जाएगा? साथ में क्या जाएगा? सिर्फ एक ही चीज, जो अच्छे कर्म किए, जो अच्छे संस्कार बनाए, जो दुआएं कमाई और जो औरों को दुआएं दी, वो अपने साथ जाएगा। जो लोग जीवन का उद्देश्य दुआएं कमाना रखते हैं, उनका प्रेजेंट लाइफ भी बहुत सुंदर होती है, क्योंकि वो खुशी कमा रहे हैं। जिस क्षण शरीर छोड़ते हैं, वो भी एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होता है। दूसरे कॉस्ट्यूम लेके जब नए घर में बच्चा पैदा होता है, तो पंडित जी कहता है, क्या भाग्य लेकर ये बच्चा आया है, इसका तो सब कुछ अच्छा ही है। 30 जून को आपके यहाँ फाइनेंशियल शीट कौन से होते हैं? फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है? 31 मार्च। हाँ, कल हम ढाका में थे, वहाँ 30 जून था। 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस शीट, 1 अप्रैल को वही ओपनिंग बैलेंस शीट। जो हमारा इस कॉस्ट्यूम में, इस बॉडी में लास्ट मिनट होगा ना, वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। चेक कर लें कि सारी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट वाले हैं। 1 सेकेंड में आत्मा शरीर छोड़ती है, सब कुछ पीछे रह जाता है, सिर्फ कर्म और संस्कार। और जैसे बच्चा आत्मा दूसरे शरीर में गई, बच्चा पैदा हुआ, 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर उधर प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट। दुआएं कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुआएं कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी हर एक के प्रति सोच, बोल, व्यवहार दूसरों को सुख देने वाला होना चाहिए। सुख सिर्फ किसी के लिए कुछ करके नहीं होता है। हाउ वी फील फॉर अदर पीपल, उनको हमारे से सुख मिलता है। अगर हम यहाँ इरिटेटेड हैं, गुस्सा करते हैं, हम भले किसी के लिए बहुत कुछ करें, लेकिन हमारे से वाइब्रेशन कौन सा मिलेगा उनको? वाइब्रेशन सुख नहीं देगा। तो आज एक चीज इकट्ठे मिलकर छोड़ते हैं, काम करेंगे, बहुत काम करेंगे, लेकिन गुस्सा करके काम नहीं करें। इस शहर को बनाएं, क्रोध मुक्त शहर बनाएं, नहीं बनाएं? हो सकता है लोग हमारे अनुसार कभी भी नहीं हो सकते। ये बिलीफ सिस्टम जितनी जल्दी यहाँ से निकाल दें, जीवन सुखी हो जाएगा। We say, I will be happy when everybody is my way. People cannot be my way. Why people cannot be my way? क्यों लोग मेरे अनुसार नहीं हो सकते? वो किसके अनुसार होंगे? लोग किसके अनुसार होंगे? वो अपने अनुसार होंगे। आप में से किस किस के बच्चे हैं? हाथ उठाएं। बच्चे हैं। किस किस के पास बच्चे हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसे? नहीं है ना? तो कभी सोचा, जब मेरे बच्चे ही मेरे अनुसार नहीं हो सकते, बाकी ऑफिस जाके ये सोचो कि लोग मेरे अनुसार हो, ये कैसे हो सकता है? स्पिरिचुअलिटी आंसर देती है। एवरी सोल, हर आत्मा के बहुत सारे संस्कार बनते हैं। ये संस्कार कब बनते हैं? आज हम इस कॉस्ट्यूम में हैं, संस्कार बनते हैं, नेचर, पर्सनालिटी। इससे पहले हम कहाँ थे? एक और कॉस्ट्यूम में थे। डिफरेंट पेरेंट्स, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट संस्कार। उससे पहले अलग कॉस्ट्यूम में थे, उससे पहले अलग कॉस्ट्यूम में थे, उससे पहले अलग। कितने सारे संस्कार हैं आत्मा के ऊपर। आत्मा को एक सीडी की तरह देखते हैं। हम सबने सीडी देखी ना, जिसपे इतने सारे गाने रिकॉर्डेड होते हैं। तो एक सीडी आप, एक सीडी आपके हस्बैंड या वाइफ, एक दिन 2 सीडी की शादी हो जाती है। दोनों के पास गाने सेम होंगे? गाने सेम नहीं होंगे ना। एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं आपके गाने बड़े अजीब अजीब से,
दूसरा कहता है आपके भी गाने थोड़े डिफरेंट से हैं कुछ। फिर हम कोशिश करते हैं कि मुझ सीडी के ऊपर जो गाने हैं वो दूसरे की सीडी पे कॉपी हो जाए, कि आप मेरे जैसे बन जाओ। कोशिश करते हैं हम दूसरों को अपने जैसा बनाने की, करते हैं ना। हम ये कोशिश कर ही रहे होते हैं तो 1-2 साल के अंदर आपके घर तीसरी सीडी आई ना, तीसरी सीडी। 9 महीने आप सोच रहे थे कि ब्लैंक सीडी आने वाली है, हम जो चाहेंगे उसके ऊपर लिख देंगे। किसी के भी घर ब्लैंक सीडी पैदा नहीं होती। वो आत्मा है जो अपने संस्कार लेकर आई है। हर सोल को उस तरह से देखो, अलग 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 संस्कार। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट पीपल टू बी माई वे? हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन तो नेचुरल है। एक्सपेक्टेशन नेचुरल कैसे हो सकती है? एक्सपेक्टेशन मीन्स यू शुड बी माई वे, एंड आप कहेंगे यू शुड बी माई वे। एक्सपेक्टेशन, लोगों की सोच, लोगों के संस्कार डिफरेंट होने वाले हैं। हमें क्या करना है? एक्सपेक्टेशन रख रख के गुस्सा नहीं करना एक दूसरे को, एक दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करके, फिर उनको एडवाइस देकर, डिसिप्लिन भी करके, लेकिन प्यार और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ चलना है। ये नहीं कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो। कोई गलत नहीं होता है, वो हमारे से अलग होता है। होता है ना अलग। आप देखो ये प्रोग्राम का टाइम 6 o'clock, हर एक टाइम पे आया है, लेकिन हर एक की डेफिनेशन अलग अलग है। भाई साहब ने कितने प्यार से कहा आई एम सॉरी मैं लेट आया, लेकिन हम में से तो मेजॉरिटी सोचते भी नहीं कि हम लेट आए, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ऑफ पंक्चुअलिटी भी डिफरेंट होती है कि नहीं? 6 बजे के प्रोग्राम के लिए किसी की डेफिनेशन होती है 5:45 पहुंचना है मुझे, वो उनका संस्कार है। किसी की डेफिनेशन होती है 6 मतलब .6 पहुंचना है, और किसी की डेफिनेशन होती है चलते हैं ना इतनी जल्दी जाके क्या 6:15 तक पहुंचो तो चलेगा। तो 5:45 भी पंक्चुअलिटी बोलते हैं, 6 भी पंक्चुअलिटी बोलते हैं, 6:15 भी पंक्चुअलिटी बोलते हैं, 6:30 भी आ रहे हैं, 7। कौन राइट है सब में से? राइट कौन है सब में से? कौन राइट है? कौन राइट है? 5:45 राइट है, 6 राइट है या 6:15 राइट है? देखो अभी अलग अलग आंसर आएंगे। पता है किस हिसाब से आएंगे? जिसके पास 5:45 वाला गाना है वो बोलेगा 5:45 राइट है, जिसके पास 6 o'clock वाला संस्कार है वो बोलेगा 6 o'clock राइट है। दिस इज संस्कार, वी आर डिफरेंट। अब 5:45 वाला 6:15 को देखेगा तो बोलेगा कितने अजीब हुआ, इतना लेट आते। 6:15 वाला 5:45 को देखेगा, बोलेगा काम नहीं, कुछ 15 मिनट पहले आके बैठे थे। This is how we feel that the other person is so wrong, because my sanskar is right for me, and I can understand the world only according to my sanskar. हर एक को अपना संस्कार राइट लगता है और राइट होता भी है, लेकिन दूसरे के संस्कार को रॉन्ग नहीं बोलना कभी। जैसे ही मैंने आपको कहा आप गलत हैं, तो वहां से आपने कहना है आप गलत हैं। और जब 2 लोग एक दूसरे को ये एनर्जी भेजते हैं आप गलत हैं, आप गलत हैं, डिसरिस्पेक्ट, रिजेक्शन, रिश्ता कमजोर होने लगता है। एक बार हम बहनें किसी के घर गए संडे मॉर्निंग 10 o'clock, तो हस्बैंड एंड वाइफ प्यार से थोड़ा सा लड़ रहे थे आपस में। तो जैसे ही हम सब पहुंचे तो कहते बैठे बैठो आप डिसाइड करो हम में से कौन राइट है। तो हस्बैंड ने कहा बहन जी पता है क्या हुआ, ये इतनी बड़ी जो मशीन है मेरी एक्सरसाइज की, ये कल इस रूम में थी, मैंने अपनी वाइफ को कहा इसको दूसरे रूम में रखवा दो। वाइफ ने कहा पूरा दिन याद नहीं रहा मुझे। आधी रात को उसने अकेले उठकर वो मशीन, इतनी भारी ट्रेडमिल जो थी
शिफ्ट करके दूसरे रूम में रखी अकेले। अब हर एक वाइफ अपने आप को देखे कि अगर आप रात को 2 बजे उठकर आपके अपने हस्बैंड की इच्छा को पूरा कर रहे हैं इतने प्यार से, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सुबह सुबह क्या मिलेगा? सुबह सुबह क्या मिलेगा? शाबाशी मिलेगी। वेरी गुड। एक्सपेक्टेशन है, मैंने इतना अच्छा काम किया तो सुबह सुबह अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। भाई साहब उठे सुबह, कहते अकेले उठ के ये मशीन हिला दी। कुछ हो गया होता रात को तो चोट लग गई होती तो सुबह तक वेट नहीं कर सकती थी कि 4 लोग आएंगे मदद। सुबह सुबह डांट दिया। एक्सपेक्ट किया था अप्रिसिएशन, मिल गई डांट। वाइफ ने आधी रात को उठ के अकेले काम किया। वाइफ राइट है? वाइफ राइट है? राइट है या नहीं है? राइट, राइट है। हस्बैंड को इतना प्यार था कि सुबह आधी रात को अपने आप क्या चोट लग जाती तो प्यार से उसने डांट दिया। हस्बैंड राइट है? तो दोनों में से राइट कौन है फिर? आप में से कौन कौन फील करता है कि वाइफ राइट है और कौन फील करता है कि हस्बैंड राइट है और कौन फील करता है कि दोनों राइट है? अपने घर जाकर ना आज एक ऐसा वाइट प्लेन पेपर लेकर उसके ऊपर बड़े बड़े में लिखना, हमेशा और हमेशा और हमेशा दोनों राइट होते हैं, और अपने घर में लगा दो। सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सारे झगड़े इसी बात के, मैं राइट हूं आप रॉन्ग है। वो कहते हैं मैं राइट हूं आप रॉन्ग है, क्योंकि हमें सिचुएशन किसके थ्रू दिखा रही है? अपने नजरिए, माय पर्सपेक्टिव विच इज राइट, एंड सामने वाला कहां से देखने वाला है? अपने पर्सपेक्टिव से, विच इज राइट। आपको क्या दिखता है? एक बटन, एक है। मुझे क्या दिखता है? 1 to 12 नंबर। अब मैं कहूं ये तो 1 to 12 नंबर है, आप कहें नहीं ये तो एक बटन है और ग्रे रंग का है। मैं बोलूंगी कमाल है, कैसी अजीब बातें करते हो आप लोग। आप कहोगे आप कमाल हो, किधर है 1 to 12? कितने दिन चल सकता है ये आर्गुमेंट? कितने दिन चल सकता है? जीवन भर। क्योंकि मुझे अपना नजरिया दिखाई देता है, आपको अपना नजरिया दिखाई देगा। अब हमें सिर्फ ये करना है, मैं राइट हूं, जो मुझे दिखाई देता है मेरे संस्कार के थ्रू वो राइट है, और आप क्या है? आप भी राइट है। एक वर्ड को निकालते हैं अपनी वोकैबुलरी से, आप गलत, यू आर रॉन्ग, एंड समटाइम्स वी से बुरे, यू आर बैड। एंड सबसे ज्यादा गलत हम पता है किसको बोलते हैं? कई बार जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और कई बार हम बच्चों को बहुत गलत बोलते हैं। छोटे बच्चे जब घर आते हैं ना स्कूल से, याद करो वो दिन जब छोटे छोटे बच्चे घर आते हैं स्कूल से, वो अपनी हर चीज बताते हैं। मम्मी आज ये हुआ, मम्मी आज ये हुआ, गोल गोल घूमते हैं मम्मी के। जब वो थोड़े इतने हो जाते हैं ना, मम्मी उनके गोल गोल घूमती है, आज क्या हुआ, किधर गए थे, किससे मिले, क्या बात हुई। पहले बिना पूछे बताते थे सब कुछ, अभी तो पूछने पर भी नहीं बताते हैं। और ज्यादा पूछ लो तो कभी कभी तो झूठ भी बोल देते हैं। फोन पे पासवर्ड, लैपटॉप पे पासवर्ड, दरवाजा बंद। क्या हुआ? कब हो गया ये चेंज? वही पेरेंट, वही बच्चा, वही सुंदर रिलेशनशिप, सब कुछ बताते थे, आज पूछने पर भी नहीं बताते हैं। क्योंकि जब वो छोटे थे और वो अपनी हर बात आकर बताते थे, तो हम कहते थे राइट राइट राइट। बच्चे को पेरेंट से एक्सेप्टेंस मिलता था। हर एक को एक्सेप्टेंस चाहिए दूसरे से। जब वो थोड़े से इतने हुए, एक दिन उस बच्चे ने आकर कहा मम्मी को, आज पता है क्या हुआ, मैं स्कूल बंक करके पिक्चर देखने गया फ्रेंड्स के साथ। उस दिन क्या मिला बच्चे को? पहली बार उसको रिजेक्शन मिला।
पहली बार उसको डांट मिली। अगली बार उसने आकर बोला, मम्मी आज पता है क्या हुआ, मैं पार्टी में गया, आज मैंने थोड़ा सा वो ट्राई किया, सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे। उस दिन तो बहुत लड़ाई हुई घर के अंदर। मम्मी पापा हमेशा राइट होते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और बच्चे 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 अभी थोड़ी देर पहले आपने आंसर दिया था ना, बच्चे बच्चे बोलिए, बच्चे स्कूल बंद करके घूमने जाना सही नहीं है, लेकिन जब सारे जा रहे थे और अगर मैं नहीं जाता तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो मेरा भी मन कर गया जाने का। राइट है, राइट है। हमने ये कहना था कि बच्चा तुम राइट हो, लेकिन जो तुमने किया वो राइट नहीं था। हमने उनको कह दिया तुम ही गलत हो। दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। और जैसे बच्चे को कह दिया तुम ही गलत हो, वो पहला दिन था जब बच्चे को पेरेंट्स से एक्सेप्टेंस नहीं मिला। फिर अगली बार उसको कहा ये भी जो तुमने किया ये भी गलत है, जिस टाइम तुम उठते हो वो गलत है, जिस टाइम तुम सोते हो वो गलत है, जो तुम पहनते हो वो गलत है, घूमते हो वो गलत है, दोस्त तुम्हारे गलत है। गलत गलत गलत। भावना बहुत अच्छी थी, इंटेंशन बहुत अच्छी थी, लेकिन रिजेक्शन देना शुरू किया, बच्चा थोड़ा दूर होने लग गया। और फिर बच्चों को उसके दोस्तों से एक्सेप्टेंस मिलने लग गई। पहले उन बच्चों ने कहा था घूमने चलते हैं, तो आपके बच्चे ने मान लिया। उसके बाद एक दिन उस बच्चों ने, दोस्तों ने कुछ और लेने के लिए कहा, और उस दिन वो बच्चा मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि वो अपने दोस्तों की एक्सेप्टेंस को खोना नहीं चाहता था। मेजॉरिटी लोग जो ये चीजें लेना शुरू करते हैं, वो इसीलिए लेना शुरू करते हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों की एक्सेप्टेंस को खोना नहीं चाहते हैं। अपने बच्चे को इतना एक्सेप्टेंस दो कि कभी भी वो अपने दोस्तों के लिए एक्सेप्टेंस के लिए जाए ना, तो फिर वो कभी ऐसी चीज लेगा ही नहीं। ये समय वो चल रहा है जब बच्चों को हर बात घर आकर सच बतानी होगी। गया वो समय जब पेरेंट हर चीज को चेक कर सकते थे कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, फोन भी चेक करते थे किसका आया। अब वो समय नहीं है। अब हमें ऐसा रिश्ता बनाना पड़ेगा कि बच्चा हर बात हमें सच बताए। बच्चे सच बताने के लिए रेडी हैं, क्या हम सच सुनने के लिए रेडी हैं? क्योंकि अगर सच सुनते ही हमने डांट दिया तो उसके बाद वो बताने वाले नहीं हैं। मैंने एक स्कूल में 250 बच्चे थे, 250। मैं कहा आप में से कौन कौन अपने मम्मी पापा को सब कुछ सच बताते हो? 5 लोगों ने हाथ खड़ा किया। सर क्यों नहीं सच बताते? बोलते वो डांटते हैं ना, गुस्सा करते हैं। तो मैंने कहा आज आप एक काम करो, उनको जाके बोलो हम आपको सब बताएंगे, आप गुस्सा नहीं करना मुझे। तो वो मेरे को देख के ऐसे हंसने लगे, पता नहीं कहाँ से आए, कितनी अजीब अजीब बातें करते हैं। मैं बोला क्या हुआ? कहते क्या हुआ? उस दिन वो हमें नहीं डांटेंगे, सारे हमारे सीक्रेट सुन लेंगे वो, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? पेरेंट्स बच्चे सच बोलने के लिए रेडी हैं। हमें ये चेक करना है हम सच सुनने के लिए रेडी हैं कि नहीं। एंड विच मीन्स जब वो सच सुनाएंगे तो हमें कैसे रहना होगा? स्थिर। रिएक्ट कर दिया, गुस्सा कर दिया, वो नहीं आने वाले हैं उसके बाद सुनाने के लिए। बहुत कुछ हो रहा है इस समय। अगर बच्चा सब कुछ आकर बताएगा ना, आप उसको प्यार से संभाल के बचा लेंगे। लेकिन डांट दिया और सोचा अब वो करेगा नहीं क्योंकि मैंने डांट दिया, तो डांटने के बाद वो करना बंद नहीं करते, वो करके बताना बंद कर देते हैं, और हमें पता ही नहीं होता वो क्या क्या कर रहे हैं जीवन में।
So we have to take care. क्या आपके यहाँ स्कूल में काउंसलर्स है? आपके यहाँ स्कूल में काउंसलर्स है काउंसलर? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखो इंडिया के मेजॉरिटी बड़े शहरों में हर स्कूल में काउंसलर कंपल्सरी है इस टाइम। कंपल्सरी है, नहीं अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट अ गुड साइन। जब आप और हम स्कूल में थे कोई काउंसलर नहीं हुआ करते थे, हम अपने पेरेंट्स से बात किया करते थे। आज हमें काउंसलर से क्यों बात करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि काउंसलर सारी बात सुनने के बाद डांटता नहीं है, वो एक्सेप्ट करता है। उसका रिस्पेक्ट इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि मैंने क्या किया सही या गलत। वो कहता है कोई बात नहीं, बैठो बैठो बात करते हैं, हर बात का सल्यूशन होता है। लेकिन मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं। बच्चा बताने वाला नहीं है। तो अगर बच्चों को बचाना है और बच्चों को संभालना है और बच्चों से कुछ चीजें छुड़ानी है, तो बच्चों से ज्यादा अटेंशन मम्मी पापा को अपने ऊपर करना पड़ेगा। तभी जड़ से प्रॉब्लम जाएगी, ऊपर ऊपर से नहीं प्रॉब्लम खत्म करनी है। एंड विच मीन्स घर का वातावरण कैसा होना चाहिए? इतना हैप्पी और पावरफुल, जहाँ हर एक दूसरे को एक्सेप्ट करे, इरिटेट नहीं हो, गुस्सा नहीं हो, एक दूसरे की बैटरी को डिस्चार्ज नहीं करो। जब घर पे बैटरी डिस्चार्ज होती है तभी दोस्तों की तरफ जाते हैं, और फिर दोस्त जो कर रहा है हम भी उस तरफ चले जाते हैं। अगर अपने बच्चों को पीयर प्रेशर से बचाना है तो अपने जीवन से एक लाइन को हटा देते हैं, लोग क्या कहेंगे। आती है ये लाइन लाइफ में कि नहीं? लोग क्या कहेंगे, सोचते हो ऐसा? लोग क्या कहेंगे? हाँ, तो जब हम ये बात को सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, तो बच्चा भी तो यही सोचेगा मेरे दोस्त क्या कहेंगे। और जब वो बच्चा अपने दोस्तों की बात नहीं मानता है, दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, वो लेना शुरू कर देता है। क्या करेंगे? उसको छुड़ाएंगे कैसे उस चीजों से? लोग क्या कहेंगे? जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं ना, कबर्ड से जो ड्रेस निकालते हैं उसका भी क्राइटेरिया ये होता है, लोगों को कौन सी वाली पसंद आएगी वो पहन कर जाते हैं। एक छोटा सा फोन खरीद के जीवन बहुत सिंपल चल सकती है, लेकिन छोटा सा फोन यूज करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? इतनी सारी चीजों का डिसीजन लेने का फैक्टर ही ये है, लोग क्या कहेंगे। क्या हम खाते हैं, क्या हम पीते हैं, क्या कपड़े हम पहनते हैं, कैसी हमारी जीवन शैली है, कैसा हम व्यवहार करते हैं और फिर कैसे हम कर्म करते हैं, सब में ये एक लाइन आ चुकी है, लोग क्या कहेंगे। और इतना सब लोगों के बारे में सोच के भी हम सब लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। आपको लगता है आप कभी सबको संतुष्ट कर पाते हैं? सबको संतुष्ट कर सकते हैं कभी? कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक ही फैक्टर होना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, मेरे परिवार के लिए क्या सही है, फुल स्टॉप। लेकिन लोग क्या कहेंगे के लिए इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, जिससे बैटरी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज। और हमारा जीवन जीने का तरीका क्या हो जाता है? लोगों को खुश करना। जब हम लोगों को खुश करने के लिए चीजें कर सकते हैं, तो हमारे बच्चे भी अपने दोस्तों को खुश करने के लिए चीजें कर सकते हैं। शुरू तो ऐसे ही होता है, बाद में आदत पड़ती है। शुरू कैसे हुआ? अगर मैंने नहीं लिया तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैंने नहीं लिया तो दोस्त मुझे क्या कहेंगे, डरपोक है, क्या है। उससे ही शुरू होता है, उसके बिना तो कोई आदत शुरू हो ही नहीं सकती। तो लोग क्या कहेंगे, इस लाइन को अपने घर से निकालने की जरूरत है। और जब हम निकाल देंगे तो हमारे बच्चों के अंदर से भी ये संस्कार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या हम कर सकते हैं हम गुस्से बिना काम, ताकि हमारे घर में भी डांटने का संस्कार ना हो सकता है?
हो सकता है, यस हो सकता है। जब सारा दिन काम करने के तरीके में गुस्से को नहीं यूज किया जाएगा, तभी जब शाम तक घर पहुंचेंगे तो गुस्से का तरीका अपनाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर सारा दिन में गुस्सा 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 करके काम किया, तो जब शाम को घर पर बच्चों तक पहुंचे तो बैटरी तो पहले ही थोड़ी बिना बात के ही गुस्सा आ जाता है। आजकल कुछ लोगों को बिना बात के भी गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि गुस्सा का संस्कार सारा दिन में क्रिएट किया। कल संडे है, एक होमवर्क लेते हैं 24 आवर्स। कितने बजने वाले हैं? 8। अभी के 8 बजे से कल रात के 8 बजे तक 24 घंटे का व्रत। रेडी? 24 आवर्स करने के लिए रेडी? यस, 24 आवर्स। यस, इजी 24 आवर्स। तो वो भी संडे, ऑफिस भी नहीं जाना है, घर पे ही रहना है। 24 आवर्स कोई कुछ भी करे, हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन भी करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। 2 चीजों में बहुत फर्क होता है। वही चीज को बहुत असर्टिवली डिसिप्लिन से बोला जाता है, और एक होता है गुस्सा। मतलब तो कौन 24 घंटे कर सकता है ये व्रत? ऊपर अभी जब हम हॉल से बाहर जाएंगे, पार्किंग लॉट से गाड़ी निकालेंगे, सीन तो हर जगह आने वाली है। सीन तो हर जगह आती है। घर तक पहुंचने से पहले ही 2 सीन आ जाएगी रास्ते में। पर्पस ऑफ लाइफ, उठना है, बाहर जाना है, गाड़ी निकालनी है, घर तक ड्राइव करना है, घर पहुंचना है, बच्चों को संभालना है। लेकिन सब कुछ किसके साथ करना है? शांति, प्यार, खुशी, 3 क्वालिटीज। पर्पस ऑफ लाइफ ये नहीं है उठना है, गाड़ी निकालना है, घर जाना है, कैसे भी नहीं। पर्पस ऑफ लाइफ है उठना है, गाड़ी निकालना है, घर जाना है, शांति, प्यार और खुशी, 3 शब्दों के साथ। ताकि काम करते हुए साथ साथ सबको दुआएं दी भी और सबकी दुआएं कमाई भी। और जब वो करेंगे हम, तो सारा काम करते हुए अंदर बैटरी कैसे रहेगी? बैटरी कैसे रहेगी? किसी को 1 मिनट डांट दो, वो कितनी देर हमारे लिए गलत सोचता है। और जब वो हमारे लिए गलत सोच रहा है, वो सारी वाइब्रेशंस हम तक आती है, हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। और यही उसको समझो और उसको बोलो ठीक है आज लास्ट, इसके बाद नहीं। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको डांट पड़ेगी, लेकिन आपने उससे प्यार से बात की। वो क्या भेजने वाला है पूरा दिन आज? वो पूरा दिन आज क्या भेजने वाला है? दुआएं। दुआएं कमाना तो बहुत इजी है। धन कमाने में मेहनत करनी पड़ती है, दुआएं कमाना तो बहुत बहुत इजी है। सबसे पहला धन कमाते हैं जब, वो धन ही दुआओं के साथ आना चाहिए। आज सबसे पहला फैक्टर जहां प्रॉब्लम आ रही है, धन जो घर आ रहा है उसमें कभी कभी किसी का दर्द लगा हुआ है। धन कमाने के समय ध्यान रखना है, धन, पैसा, मनी जो हम अर्न करते हैं, धन जो हम कमा कर घर लाएं, वो धन दुआओं के साथ आना चाहिए। धन कमाते समय अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचना है। आप में से किस किस ने एक्सपेरिमेंट किया है ये और अनुभव किया है कि आप मार्केट गए कुछ लेने के लिए, लेट्स से सब्जी लेने गए, फ्रूट लेने गए, एक ब्रेड ही लेने गए, और दुकानदार ने आपको बोला मैडम आज मेरे पास ताज़ा नहीं है, आप दूसरी दुकान से लो। मिले ऐसे लोग? किस किस को कभी कोई ऐसा मिला है जिसने ऐसा किया? देखो कितने अच्छे लोग हैं आज दुनिया में। आज भी जब वो उस टाइम ऐसा करते हैं तो वो क्या करते हैं? अपना नुकसान करते हैं। वो उस दिन वो धन नहीं कमाते हैं। उस दिन आपके लिए 200 रुपए एप्पल छोटी चीज है, उस दुकानदार के लिए वो 200 रुपए एप्पल बहुत बड़ी चीज हो सकती है।
उस दिन उसका वो एप्पल बिकेगा नहीं, लेकिन उसने क्या किया, अपने फायदे का नहीं सोचा। किसके फायदे का सोचा? आपके फायदे का सोचा। अपने फायदे का नहीं सोचा, आपके फायदे का सोचा। उस दिन उसने धन नहीं कमाया, लेकिन आपने उसको कैसी वाली थॉट्स दी? कैसी वाली थॉट्स थी? इसको बोलते दुआएं। आप घर गए, आपने 2-4 लोगों को बताया, पता है आज दुकानदार ने क्या किया, ऐसा बोला। वो 2-4 लोगों ने भी क्या भेजा? दुआएं। उसके बाद से अगले दिन किस दुकान के ऊपर गए? किस दुकान पर गए? उसी दुकान पर गए ना। उस दुकानदार ने पहले दिन धन नहीं कमाया, पहले दिन क्या कमाया? दुआएं कमाई। उसके बाद उसने जीवन भर भरपूर धन कमाया। ये लॉ है, ये नियम है। अब ये इसका ऑपोजिट भी कर सकता था कि 2 नीचे सड़े हुए एप्पल, 3 ऊपर अच्छे एप्पल। उस दिन वो धन कमाता, लेकिन उस दिन आप घर जाके उसको और क्या भेजते साथ में? सड़ा हुआ एप्पल दिया मुझे। ये हो गया दुआओं का ऑपोजिट। एक नियम है, लॉ है, फिट कर लें। जो लोग धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाएंगे और सफलता कमाएंगे। ये डेफिनेट है। इसको लेकिन एक्सपेरिमेंट करना है, नहीं तो आज हमारे जीवन का पर्पस क्या हो गया? मेरे पूछे, मेरा फायदा होना चाहिए। जो इस लक्ष्य से जीवन जिएगा, मेरा फायदा होना चाहिए, वो धन कमाएगा। जो इस लक्ष्य से जीवन जिएगा कि हम दोनों का फायदा होना चाहिए, वो धन से पहले दुआएं कमाएगा। और जो दुआएं कमाएगा वो धन तो कमाएगा ही कमाएगा, ये पक्का है। धन हमारे घर जो आता है, उससे हम अपने परिवार को, बच्चों को अन्न खिलाने वाले हैं, खाना। वो धन में किसी का दर्द नहीं लगा होना चाहिए। वो धन में किसी का दर्द नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो वो अन्न भी सात्विक नहीं रहा। फिर उसके बाद उसमें किसी का दर्द आ जाएगा। ये जो हमारी जीवन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, ये सबसे पहले तो हमारे धन कमाने के तरीके से हुई है। अपने धन को सात्विक बना दें। इसीलिए धन को लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी मतलब डिविनिटी, डिवाइन मनी, मनी विद ब्लेसिंग्स ऑफ अदर पीपल। कर सकते हैं अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोच सकते। पर्पस ऑफ लाइफ धन कमाना नहीं, पर्पस ऑफ लाइफ दुआएं कमाना। धन अपने आप आएगा। दोनों चीजें चाहिए जीवन में। धन से सामान आएगा, दुआओं से खुशी और रिश्ते और सेहत आएंगे। दुआएं कमाओ, धन अपने आप आएगा। धन सिर्फ कमाने का पर्पस बना लिया तो धन आ रहा है, दुआएं नहीं आ रही, दुआएं नहीं आ रही। जब धन सात्विक घर आता है, उसके बाद अन्न सात्विक खाते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक अन्न, प्यार से बनाया हुआ भोजन। अगर मन को शांत रखना है, खुश रखना है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, जो आपके लिए खाना बना रहा है उसका मन शांत होना चाहिए। जो आपके लिए खाना बना रहा है उसका मन शांत होना चाहिए। आप कितना भी शांत रहने की कोशिश कर लो, आपके लिए जो खाना बना रहा है अगर वो अशांत परेशान है, तो उसके मन की वाइब्रेशन खाने में, और फिर खाने से वाइब्रेशन खाने वालों के मन पर पड़ती है। आजकल हम बाहर ज्यादा खाते हैं कि नहीं? 30-40 साल पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जेनरेशन, वो लोग कहते थे बाहर कौन खाता है। आजकल के बच्चे कहते आज घर पे खाना खाने का। कितना चेंज हो गया। बाहर खाना, ज्यादा खाना मतलब धन कमाने के लिए जो खाना बनाया गया है वो खाना खाना। घर में खाना खाना मतलब
माँ ने प्यार से बनाया हुआ खाना। तो इंटेंशन एंड वाइब्रेशन इन द फूड कौन सा है? टू अर्न मनी और टू गिव लव। दोनों में फर्क, दोनों में फर्क। घर को खुश और शांत बनाना है, खाना बनाते समय खाने के अंदर परमात्मा को याद करते हुए अच्छी अच्छी थॉट्स डाल दो। हमारा घर स्वर्ग है, हम सब के आपस में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हम सब एक दूसरे को प्यार और सम्मान करते हैं, हमारे बच्चे बहुत बहुत प्यारे हैं। घुमाते जाओ कड़छी और डालते जाओ उसके अंदर, और उसका चेंज घर के अंदर देखो, प्रसाद बन जाएगा। हर भोजन प्रसाद बना दो, हर भोजन प्रसाद बनाओ। प्रसाद वो नहीं होता सिर्फ जो थोड़ा सा मंदिर में मिलता है, वो प्रसाद नहीं होता। कुछ भी चीज उसको याद करते हुए अच्छी थॉट से बनाई, वो प्रसाद बन गया। अमृत सिर्फ वो नहीं होता जो मंदिर में थोड़ा सा मिलता है। कोई भी पानी लिया, उसमें परमात्मा को याद किया, अच्छी थॉट पानी के ग्लास में डाली, वो पानी अमृत बन जाता है। ये पानी का ग्लास जो यहाँ है ना, इसमें वाइब्रेशन है, एनर्जी है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। इसीलिए अलग अलग शहर का पानी अलग होता है, और इसलिए अलग अलग शहर की बोली भी अलग होती है, वाणी अलग होती है। आपके शहर अगर आकर कोई 3 महीना रह ले, वो भी आपकी तरह ऐसे प्यार प्यार से बात करना शुरू कर देगा। तो कहेंगे अच्छा आजकल वहां का पानी पी रहे हो, कहते हैं ना। और यही आपके शहर से कोई बहुत सिंपल स्वीट कहीं दूसरी तरफ आ जाए हमारे उधर, कहेंगे अच्छा अब इस शहर के पानी का असर हो गया, दिखाई दे रहा है, चेंज हो गया वक्त। पानी का इंस्टेंट असर पड़ता है लोगों के ऊपर। ये शहर की जो वाइब्रेशन है ना, सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, पीस, वहाँ के पानी में होती है वाइब्रेशन। तो जो वो पानी पीता जाएगा ना रोज, उसके संस्कारों पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर कोई ऐसे शहर में आओ जहाँ टेंशन, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वहाँ के पानी में होता है वो। यहाँ से आप वहाँ चले जाओ, 3 महीने पानी पी लो वहाँ का, आप उतना ही गुस्सा करना शुरू कर दोगे जितना वहाँ के शहर में लोग कर रहे हैं। किसी ने मुझे उस दिन एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई। कहते श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेकर जा रहा था, लेके जा रहा था ना श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधे पे। तो मैं शहर का नाम नहीं लूंगी। कहते बीच में वो शहर आया, तो श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को उतारा, कहा बस मैं थक गया, अब मैं नहीं उठा सकता आपको अभी और। तो उसके माँ बाप ने कहा तुम सिर्फ हमें शहर के बाहर तक ले जाओ, उसके बाद छोड़ देना। क्या नहीं, मेरा नहीं, बस मैं थक गया, मैं नहीं उठा सकता। कहा शहर के बाहर तक ले जाना सिर्फ। और जैसे श्रवण कुमार अपने माँ बाप को शहर के बाहर ले गया, फिर कहते नहीं मैं तो आपको आगे उठा के ले। शहर का पानी बदल गया तो सोच बदल जाती है। पानी में बहुत 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 पावर है। इसलिए जैसा ही पानी पीना शुरू करे ना, 10 सेकेंड्स पॉज करो। पीना नहीं इस पानी को कभी भी ऐसा, इसको 10 सेकेंड पॉज करो, परमात्मा को याद करो। सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियां पानी में कूट कूट के भरी हुई हैं। ये मेरा पानी का ग्लास जो है ये अमृत है। मैं डिवाइन आत्मा हूँ, मैं हैप्पी आत्मा हूँ, मेरा शरीर परफेक्ट है। ऐसा 10 सेकेंड उसमें अच्छा थॉट डाल के पानी की वाइब्रेशन को चेंज करके उसको पी लो। आपके घर में रोज सुबह जितना पानी सारा दिन पीने के लिए चाहिए होता है ना, उसको इकट्ठा कर दो और उस पानी के साथ मेडिटेशन करो 5 मिनट सिर्फ। और उस पानी में ये संकल्प डालो, इस घर में रहने वाला हर एक शांत है, खुश है, हेल्दी है, हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, सफलता हमारे घर के लिए निश्चित है। ये 3 मंत्र डाल दो उस पानी के अंदर एंड पूरा दिन सबको वो पानी पिलाओ। और पानी पी के, खाना खा के उनकी सोच को बदलते हुए देखो। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, ये प्योर साइंस और स्पिरिचुअलिटी है।
इसको यूज करना है। कहीं भी चलते फिरते किसी के भी मन की स्थिति का बना हुआ हाथ का खाना खा लिया, उसमें परमात्मा को याद करके शक्ति नहीं डाली तो किसी का गुस्सा ले लिया, किसी की चिंता ले ली, किसी का डर ले लिया, किसी की जेलसी ले ली। ऐसे ही हमको सिखाया नहीं गया था कि प्लेट आने से पहले किसको याद करना है, किसको याद करना है, परमात्मा को याद करके फिर खाना शुरू करना है। कर सकते हैं 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स कर सकते हैं हर प्लेट और हर ग्लास के सामने। किसी के भी घर में ऐसे ये नशा मुक्ति चाहिए ना, उस पानी में और खाने में उस बच्चे के लिए डाल दो। ये सात्विक आत्मा है, ये हर एक चीज जो खाता है और पीता है वो सात्विक है। उसके अलावा इसके मुख के अंदर कुछ जा ही नहीं सकता। रोज डालो, रोज डालो, रोज डालो, उसकी सोच बदल जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट है। मेडिटेशन एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसको जीवन के हर पहलू में यूज करना है। ज्ञान सुबह सुबह भर लिया और मेडिटेशन कर लिया, आधा घंटा अपने आप को दे दिया। सिर्फ अपने संस्कार नहीं बदलेंगे, परिवार में सबके संस्कार बदलते जाएंगे। हर घर में एक बैटरी चार्ज हो गई तो बाकी सब बैटरी को चार्ज करना तो बहुत ईजी। एक बैटरी चार्ज चाहिए, उसमें बाकी सारे कनेक्ट हो जाएंगे। तो रेडी है अपने लिए आधा घंटा निकालने के लिए? रेडी अपने लिए आधा घंटा निकालने के लिए? 24 घंटे का व्रत कौन सा रखना है हमने आज? 24 आवर्स। हाँ जी, गुस्सा नहीं करना, नहीं बोलेंगे। 24 आवर्स आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये नहीं कि काम नहीं करवाना, लेकिन करवाना, लेकिन करवाने का तरीका कैसे है? पीसफुल, हर एक को एक्सेप्ट करते हुए कि हर एक के संस्कार अलग होते हैं, कोई भी गलत नहीं होता। बच्चों को एक्सेप्ट करके अपना बनाओ। अपना मतलब वो हर चीज आपके साथ शेयर करे, बाहर नहीं। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ हर चीज शेयर करेंगे वो बच्चे प्रोटेक्टेड रहेंगे। उनको ये अश्योरेंस दिलाओ कि वो कुछ भी शेयर करें, आप सुनने के लिए रेडी हैं और आप डांटते नहीं हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन वैसा पेरेंट बनने के लिए खुद की बैटरी को रोज परमात्मा से कनेक्ट करके अपनी बैटरी को क्या करना पड़ेगा? चार्ज। और सारा दिन का काम करने का तरीका कैसे रखना पड़ेगा? विद पेशेंस, विद एक्सेप्टेंस। एक्सपेक्टेशन नॉर्मल नहीं है, एक्सेप्टेंस नॉर्मल है। हर एक अपनी क्षमता अनुसार, अपने संस्कार अनुसार सही कर रहा है। पर्पस ऑफ माई लाइफ क्या कमाना? पर्पस ऑफ आवर लाइफ क्या कमाना है? दुआएं कमाना है। सबको दुआएं देना है, दुआएं कमाना है। जब ऐसे चलते रहेंगे ना सारा दिन, तो ये बैटरी ऐसे 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 चार्ज हो जाएगी। धन कमाने से पहले क्या कमाना है? दुआएं कमानी है। दिन की शुरुआत कल सुबह से, सुबह सुबह आधा घंटा बाहर की खबरें, दुनिया में क्या हो रहा है, ये भर के अपने मन को कभी भी पोल्यूट नहीं करना। सुबह सुबह मीडिया और सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन हमें देता जा रहा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी में बहुत कुछ है। जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। वी आर वॉट वी वॉच, रीड एंड लिसन। अगर सुबह सुबह हिंसा, करप्शन, ये सब अंदर भरा, कोई सोच बन जाएगी। सुबह सुबह ज्ञान भरा, प्यार, सम्मान, यूनिटी, ये बातें भरी, वो हम बन जाएंगे। सुबह का आधा घंटा और रात को सोने से पहले 10 मिनट, ये 2 टाइम प्योर सात्विक बातें अंदर भर के सोना है। 10 मिनट सोने से पहले और सुबह उठते ही आधा घंटा। इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज 10 लाख परिवार हैं।
आपकी तरह घर पर रहते हैं, परिवार संभालते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं सारा दिन, लेकिन सुबह का आधा पौना घंटा सेल्फ फर्स्ट, अपनी प्रायोरिटी, उसके बाद सारा दिन सब काम के लिए। लेकिन सुबह सुबह बैटरी को क्या कर लिया? चार्ज। आप मेडिटेशन सीखना चाहेंगे? आप मेडिटेशन सीखना चाहेंगे, अपने आप को चार्ज करना चाहेंगे? एक दिन का व्रत तो कर सकते हैं, लेकिन हर रोज नॉर्मल रहे, वो व्रत ना करना पड़े, पीसफुल रहना हमारा नेचुरल वे ऑफ लिविंग बन जाए, उसके लिए मेडिटेशन करके हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना है। यदि मेडिटेशन के कोर्स का टाइम नहीं दिया, आप सब जब अंदर आए तो आपको सेंटर के एड्रेस भी मिले होंगे। हर सेंटर पर बहनें निस्वार्थ सारा दिन मेडिटेशन सिखाने के लिए हमेशा अवेलेबल है, और इस विद्यालय में सारी सेवाएं निःशुल्क कराई जाती हैं। कोई भी खर्चा, कोई भी कॉस्ट किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी मेडिटेशन कोर्स के लिए, किसी के लिए भी नहीं लिया जाता है। हमें सिर्फ उन सेवाओं को यूज करना है। तो दीदी हमें बताएंगी कि कल से नहीं, परसों से, मंडे से मेडिटेशन कोर्स का टाइम क्या है। ट्यूसडे से रखेंगे। 15 तारीख मंगलवार से मेडिटेशन का कोर्स सवेरे 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, और शाम को 5:30 से 6:30 तक। ये 2 टाइम हमने रखा है। और हमारे अगरतला में जो भी ब्रांच हैं, सभी ब्रांच में रखा है। एक तो बनमालीपुर में हमारा जो मेन ब्रांच है वहाँ पर भी होगा, इसलिए रखा है कि जिसको जहाँ नज़दीक हो वहाँ जा सके। और दूसरा हमारा ब्रांच रामनगर 5 नंबर में भी है, तीसरा नेताजी चौमन में भी है, चौथा बाधरघाट में भी है, 5वां आरालिया में भी है। इन सभी सेंटर में सवेरे 7:30 से 8:30, शाम को 5:30 से 6:30 यह हमने मास मेडिटेशन का क्लास रखा है। कितने दिन दीदी? कितने 3 दिन के लिए रखा। 3 दिन के लिए 15, 16, 17। इसके अलावा भी कोई और टाइम किसी के लिए सुइटेबल हो तो हमें इन्फॉर्म करेंगे, हम वो भी अरेंज करेंगे। आप सबको 3 days वेलकम है। 3 days आ सकते। 3 days 15, 16, 17 सुबह 7:30 से 8:30 वन टाइम। मॉर्निंग नहीं सूट करता, इवनिंग 5:30 से 6:30, दोनों में से कोई भी टाइम 1 hour 3 घंटा, दैट्स सिंपल। और अगर दोनों टाइम नहीं सूट करते तो दिन में कभी भी, और फ्री, इससे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो 3 घंटे निकालेंगे मेडिटेशन सीखने के लिए, यस, अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, ताकि खुद को चार्ज करके फिर अपनी फैमिली को भी चार्ज करेंगे। चलिए 2 मिनट अभी बैठते हैं सीधा, और आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम घर पहुंचने तक हम साइलेंस में रहेंगे, और इस हॉल से हम बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे। सभी नहीं उठेंगे, जैसे जैसे बताया जाएगा बिल्कुल तभी उठेंगे। सिर्फ 10 मिनट्स में हॉल खाली होगा, लेकिन दुआएं कमाते हुए होगा, दूसरे को सहयोग देते हुए होगा। एंजल्स की तरह चलेंगे। और 15 मिनट घर पहुंचने तक अपनी लाइफस्टाइल के चेंजेस, क्या हमने परिवर्तन लाना है, व्यवहार में क्या चेंज लाना है,
कैसे सबसे बात करनी है, कैसे हर एक के लिए सोचना है, ताकि मेरी हर थॉट दूसरे के लिए ब्लेसिंग है, मेरा हर वर्ड आशीर्वाद हो, अपने भी संस्कार बदले और मिलकर इस संसार को फिर से वही सत्योगी संस्कार बनाए। देखिए अपने आप को, आई प्योर पावरफुल बीइंग, मैं पवित्र आत्मा हूँ। फील करें अपनी प्योरिटी, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेरा हर थॉट, हर शब्द और मेरा व्यवहार दूसरों को दुआएं देता है और रिटर्न में मुझे दुआएं मिलती हैं। पर्पस ऑफ माई लाइफ सबको सुख देना, सिर्फ सब काम करना नहीं, काम करते हुए सबको सुख देना है। लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे, लेकिन मैं पीसफुल पावरफुल आत्मा हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन, औरों को डिसिप्लिन करने से पहले देखिए अपने आप को घर में, फैमिली में और अपने काम के स्थान पर अलग अलग लोग, अलग अलग व्यवहार, किसी से गलती भी हो सकती है, किसी से नुकसान भी हो सकता है। हमारा उनके साथ बात करने का तरीका, उनके साथ व्यवहार, शिक्षा देना है उनको, लेकिन पहले प्यार देना है, सुख देना है, शक्ति बढ़ानी है, फिर शिक्षा देना है, एडवाइस देनी है, डिसिप्लिन करना है, पहले उनकी शक्ति बढ़ानी है। मैं पावरफुल आत्मा हूँ, दूसरों को भी पावरफुल बनाते हैं। हर चीज जो खाते हैं वो प्रसाद है, जो पीते हैं वो अमृत है। मैं सात्विक आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा हूँ मैं। उसके संस्कार, उसका प्यार, उसकी शक्ति मुझ आत्मा में भरपूर है। अपने फायदे से पहले दूसरों का फायदा, सेवा करना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है।
अगले 24 घंटे मेरा व्रत है। कोई भी सीन सामने आए, ऐसा भी व्यवहार सामने आए, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, संयम, डिसिप्लिन, स्टेबल। कोई मुझे हिला नहीं सकता, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा धन सात्विक, मन सात्विक, मन सात्विक। आज रात को सोने से पहले 5 मिनट ध्यान भरकर, सुबह उठते ही 15-20 मिनट परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर भरकर अपनी बैटरी को चार्ज करके दिन की शुरुआत करेंगे कल से। अगले 15 मिनट जब हम घर पहुंचेंगे तब तक हम साइलेंस में रहेंगे। साइलेंस आत्मा की ताकत को बढ़ाता है। अपनी चेकिंग अपने आप से बात करते हुए अगले 5 मिनट हम यहीं साइलेंस में बैठेंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा तभी उठेंगे। फरिश्तों की तरह बाहर चलेंगे, एंजल्स कैसे चलते हैं। एकदम साइलेंस, जैसे हॉल में कोई है ही नहीं।